Good evening, everybody. Let us start our today's session with a meditation. Is my voice audible? हाँ जी सिस्टर ऑडिबल। Is the background music audible? हाँ जी। Thank you, sister. So let us वेलकम start सिस्टर। our meditation. Sit back comfortably. Relax your mind. Relax your body. Focus your breathing. As you exhale, leave all the past behind. All the packages, the tiredness from today's work, and any tension. Leave it all behind. And as you inhale, take the fresh breath. Feel the aliveness, feel the freshness, and be grateful for the present moment. Now inhale and exhale. As you inhale, feel grateful for the present moment, for who you are. Appreciate yourself for all you do to strengthen yourself and encourage for keep working your best. Remind yourself, I am a being of love and light. I am God's child. God's powers, love, and blessings are a divine circle of protection around me. I am enough. My life is perfect, whole, and complete. All is well in my world. Om Shanti. And let me share the screens. The screen visible? हाँ जी विजिबल। Thank you, sister. So today's topic is from addictive to enlightened relationships. Yesterday we have discussed the disadvantages of being addicted to anything or anybody. We have seen why we become addicted to these patterns. The pain, lack, neediness, these are all the things inside us. And when we want to fulfill these desires, when we seek fulfillment in material things, it is not long lasting, it is momentary pleasure. And that's why we keep seeking for external validation. The biggest cause of these patterns is our identification with our own mind when we are in the unenlightened stage. And then we seek validation
through our relationships too. We have seen yesterday that in the initial phase, we feel everything to be disappearing, every pattern, every we feel like every need is fulfilled now. We feel that everything is perfect, everything is fine. That's how we feel. But our behavior, when the person's behavior is not according to us, we feel the pain that is underlying those momentarily happiness. We feel those painful feelings even stronger. And then we start blaming the other person. So we have seen the disadvantages of being addicted to anybody. Now the author is explaining how we can shift from being addictive to enlightened in our relationships. Can we change an addictive relationship into a true one? So the secret is finding a question we all are seeking. From the last session we have read, कैसे हम एडिक्टिव रिलेशनशिप को एक ट्रू वन में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम बार बार पढ़ रहे थे ना कि ट्रू लव हैज नो अपोजिट। इसीलिए हमें उसको ट्रू लव में हम उसको ट्रू वन में कैसे चेंज कर सकते हैं। क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? तो ऑथर कहते हैं यस, बीइंग प्रेजेंट एंड इंटेंसिफाइंग योर प्रेजेंस बाय टेकिंग योर अटेंशन एवर मोर डीपली इनटू द नाउ। जब हम प्रेजेंट रहते हैं और अपनी जो प्रेजेंस है उसको इंटेंसिफाई करते हैं, उसको और ज्यादा हम प्रेजेंट होते हैं। और हम कैसे अपने प्रेजेंस को इंटेंसिफाई कर सकते हैं? अपना जो अटेंशन है, अपना ध्यान जो है, उसको हम और ज्यादा डीपली नाउ इस प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आए। Whether you are living alone or with a partner, this remains the key. ऑथर कह रहे हैं चाहे कोई पार्टनर हो चाहे आप अकेले हो, की क्या है कि आप डीपली नाउ में ही आ जाए। For love to flourish, the light of your presence needs to be strong enough so that you no longer get taken over by the thinker or the pain body and mistake them for who you are. अपने लव को फ्लरिश करने के लिए, अपनी प्रेजेंस की लाइट के लिए, जब हमारी प्रेजेंस की जो लाइट है, हमारी प्रेजेंस इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, तब हम जो हमारे अंदर का जो थिंकर है, जो माइंड है, जो पेन बॉडी हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, उन सबको मिस्टेक नहीं करेंगे, उन सबके साथ में अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। टू नो योरसेल्फ एज द बीइंग अंडरनेथ द थिंकर, द स्टिलनेस अंडरनेथ द मेंटल नॉइज, द लव एंड जॉय अंडरनेथ द पेन इज फ्रीडम, सल्वेशन, एनलाइटनमेंट। अपने आप को जाने, टू नो योरसेल्फ एज बीइंग अंडरनेथ द थिंकर, मतलब जो हमारे माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, उन थॉट्स के भी अंडरलाइन क्या है? हमारे अंदर एक बीइंग है जो हमारा वास्तविक रूप है, हमारा जो खुद का रूप है, वो एक बीइंग है। और वो क्या है? स्टिल है, एकदम स्टिलनेस है हमारे मेंटल नॉइज के अंडर में। मतलब मेंटल नॉइज जो थॉट्स एकदम चलते ही रहते हैं, क्योंकि एक दिन में 60,000 से 70,000 हम थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो इस मेंटल नॉइज के भी अंडरनेथ एक स्टिलनेस, एक स्थिरता प्रेजेंट होती है। द लव एंड जॉय अंडरनेथ द पेन, जो पेन हम फील करते हैं ना, उसके अंडरनेथ भी लव और जॉय होता है। तो इन सारी चीजों को जानना कि हमारे थिंकर के अंडरनेथ एक हमारी बीइंग है जो स्टिल है, जो पेन हम फील करते हैं उसके अंडरनेथ भी लव और जॉय है। इन चीजों को जानना ही फ्रीडम है, सेल्वेशन है, एनलाइटनमेंट है। To disidentify from the pain body is to bring presence into the pain and thus transmute it. जब हम अपने पेन बॉडी से डिसआइडेंटिफाई करते हैं, खुद को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं अपने पेन बॉडी से, मतलब जो पेन है उससे हम ऐसे नहीं सोचते कि हाँ मैं ये पेन, ऐसा हम खुद को डिसआइडेंटिफाई करना बंद कर देते हैं, तभी हमारी जो प्रेजेंस होती है वो हम पेन में लेकर आ पाते हैं। उस पेन के अंदर हमारी जब प्रेजेंस आती है तब हम उस चीज को ट्रांसम्यूट कर पाते हैं, चेंज कर पाते हैं। To disidentify from thinking is to be the
silent watcher of your thoughts and behavior, especially the repetitive patterns of your mind and the roles played by the ego. जो हमारी थिंकिंग है उससे जब हम डिस आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसे बोला जाता है ना, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। तो जो भी सोचते हैं उसको सब चीजों के ऊपर हमें बिलीव करने की जरूरत नहीं है, तो उस थिंकिंग से खुद को डिसआइडेंटिफाई करेंगे। मतलब ये जो थॉट चल रहे हैं उसके भी अंडर अंडरनेथ हमें ये ध्यान रखना है कि कौन उन थॉट्स को क्रिएट कर रहा है। ऐसे जब हम खुद ऐसे देखने लगेंगे, वो अटेंशन लेकर आ पाएंगे, तभी हम अपने बीइंग को जानेंगे। जब हम थिंकिंग से खुद को डिसआइडेंटिफाई करेंगे, तो फिर एक साइलेंट वॉचर की तरह हम ध्यान रखेंगे कि हमारे थॉट्स, बिहेवियर, वो उनमें क्या पैटर्न्स चल रहे हैं। हम खुद को साइलेंटली बैठकर वॉच करेंगे, स्पेशली द रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ योर माइंड एंड द रोल्स प्लेड बाय द ईगो। स्पेशली किन चीज़ों पे ध्यान रखना है कि हमारे माइंड में जो रिपीटेटिव पैटर्न्स चलते हैं, कुछ सिमिलर टाइप के थॉट्स चलते हैं, उन चीज़ों को हमें देखना है। और जो हमारे ईगो के रोल्स प्ले किए जा रहे हैं उन चीजों को देखना है। इफ यू स्टॉप इन्वेस्टिंग इट विथ सेल्फनेस, द माइंड लूजेस इट्स कंपल्सिव क्वालिटी। अगर हम जो सेल्फनेस है उसमें इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, तो फिर जो माइंड है वो अपनी कंपल्सिव क्वालिटी को लूज कर देगा, which basically is the compulsion to judge and so to resist what is, which creates conflict, drama, and new pain. मतलब जब हमारी सेल्फनेस में हम इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, मतलब जो भी चीजें मिल रही हैं उन चीजों से खुद को आइडेंटिफाई करना बंद कर देंगे, तो हमारी माइंड की जो कंपल्सिव क्वालिटी है वो उसको लूज कर देगी। माइंड की कंपल्सिव क्वालिटी क्या है कि माइंड बैठ करके सबको जज करता है। और माइंड क्या करता है, जो प्रेजेंट में एक्चुअली है, जो व्हाट इज है, उसको रेजिस्ट करता है, उसको अस्वीकार करता है। और इस वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, ड्रामा क्रिएट होता है, न्यू पेन क्रिएट होता है। In fact, the moment that judgment stops through acceptance of what is, you are free of the mind. ऑथर ने बोला कि जिस मोमेंट में हमारी जो जजमेंट है वो स्टॉप हो जाती है। जज हम कब करते हैं, जब हम एक्सेप्ट नहीं करते किसी चीज को। जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते तभी हम उसको जज करते हैं। और जब हमारी एक्सेप्टेंस आ जाती है, जो जैसा है वो वैसे ही है, तो फिर हम जजमेंट करना बंद कर देते हैं और तभी हम अपने माइंड से फ्री हो पाते हैं, वो डिसाइड करते हैं। यू हैव मेड रूम फॉर लव, फॉर जॉय, फॉर पीस। और तब क्या होगा, हमारे माइंड, तब हमारे अंदर में लव, जॉय और पीस के लिए जगह है। फर्स्ट यू स्टॉप जजिंग योरसेल्फ, देन यू स्टॉप जजिंग योर पार्टनर। तो पहले हम क्या करेंगे, खुद को जज करना बंद करेंगे, दूसरा अपने पार्टनर को भी जज करना बंद करेंगे। The greatest catalyst for change in a relationship is complete acceptance of your partner as he or she is, without needing to change or without needing to judge or change them in any। तो ग्रेटेस्ट कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट क्या होता है, जब हमने साइंस में देखा होगा अपने स्कूल में, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हम लोग करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है कोई रिएक्शन होने में, कुछ कुछ केमिकल्स को। तो अगर हमें फास्ट देखना है उस एक्सपेरिमेंट को, तो उसमें ना किसी एक केमिकल को एज अ कैटलिस्ट डाला जाता है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, वो ना उस जो टाइम को वो लेने वाला है, वो केमिकल उस चीज को, वो टाइम को ही छोटा कर देता है। तो फिर बहुत क्विकली हमें वो रिजल्ट मिल जाते हैं। तो इसी चीज को कंपेयर करके बताया ऑथर ने कि अगर हमें कोई रिलेशनशिप में चेंज लेकर आना है, तो उसके लिए ग्रेटेस्ट कैटलिस्ट क्या होगा, हमारी एक्सेप्टेंस। कि हम कंप्लीटली एक्सेप्ट करें, जो जैसे है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें, और हम उसको जज ना करें और उनको चेंज करने की कोई कोशिश ना करें किसी भी तरह से, इन एनी वे दैट इमीडिएटली टेक्स यू बियॉन्ड द। और जब ऐसा हो जाएगा सच में, तो फिर हम ईगो के बियॉन्ड चले जाएंगे। ऑल माइंड गेम्स एंड ऑल एडिक्टिव थिंकिंग आर देन ओवर। तब फिर हमारी जितनी माइंड गेम्स होती है, जितनी एडिक्टिव थिंकिंग होती है,
वो सब खत्म हो जाएगा। देर आर नो विक्टिम्स एंड नो परपिट्रेटर्स एनीमोर, नो अक्यूजर एंड नो अक्यूज्ड। और फिर जैसे हम सोचते हैं ना, कभी किसी को ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से तो हुआ, इसकी वजह से तो हुई। कल हमने सेशन में क्या देखा था कि वो जब तक एक ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, पर जब कोई हमारे अकॉर्डिंगली बिहेव करता है तो फिर हमें लगता है कि वो उस पर्सन के वजह से दुख तकलीफ हो रही है, इसलिए हम उसको ब्लेम करने लग जाते हैं। फिर हम खुद को एज अ विक्टिम देखते हैं और उनको देखते हैं कि उन्होंने अत्याचार किया। तो फिर जब हम माइंड के बियॉन्ड चले जाते हैं, ईगो के बियॉन्ड चले जाते हैं, तब ये जो जो भी गेम्स होते हैं ना, विक्टिम परपेट्रेटर्स, ये सब हमें कुछ भी फील नहीं होता क्योंकि हमने कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लिया जो जैसे उसका वैसे ही। तो फिर कोई भी एक्यूजर और अक्यूज नहीं रहता है, किसी को हम दोष नहीं देते जब हम कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लेते हैं। This is also the end of all codependency of being drawn into somebody else's unconscious pattern and thereby enabling it to continue. तो फिर इससे जो कोडिपेंडेंसी होती है, जब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी के ऊपर, वो डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाती है। और किसी और के जितने भी अनकॉन्शियस पैटर्न है, जैसे कि हमारी भी कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा देर तक तो नहीं रहती होगी, वैसे ही सामने वाले का भी होता होगा। तो उनके जितने अनकॉन्शियस पैटर्न होते हैं उसमें भी हम नहीं घुसते हैं फिर। और फिर हम इनेबल करते हैं कि ये जो है वो कंटिन्यू होता रहे। यू विल देन ईदर सेपरेट इन लव और मोर, इवन मोर डीपली इनटू द नाउ टुगेदर इनटू बीइंग। तो ऑथर कह रहे ऐसा करने से क्या होगा, या तो हम सेपरेट हो जाएंगे इन लव और मोर, एवर मोर डीपली इनटू द नाउ टुगेदर इनटू बीइंग। तो इनटू लव और इनटू बीइंग हम उसके अंदर बहुत ज्यादा डीपली चले जाएंगे। कैन इट बी दैट सिंपल? यस, इट इज दैट सिंपल। और जब बोलेंगे ये इतना सिंपल है, हाँ ये इतना सिंपल है। लव इज अ स्टेट ऑफ, your love is not outside, it is deep within you। ऑथर बता रहे हैं कि जो लव है वो हमारी बीइंग की एक स्टेट है। तो जो हमारी सोल होती है, हमारी बीइंग की, उसमें जो 7 क्वालिटीज होती है उसमें एक लव भी आता है। प्योरिटी, पावर, पीस, हैप्पीनेस, लव, ब्लेसिंग्स एंड नेचर। तो लव भी एक क्वालिटी होती है, स्टेट होती है बीइंग की। और लव कहीं पे बाहर नहीं होता है, वो डीपली हमारे के अंदर मौजूद होता है। यू कैन नेवर लूज इट और एंड इट कैन नॉट लीव यू। हम कभी भी उस love है वो हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाता। It is not dependent on some other body, some external form। और ये जो लव है वो डिपेंडेंट भी नहीं होता है किसी और के ऊपर, किसी एक्सटर्नल फॉर्म के ऊपर। इन द स्टिलनेस ऑफ योर प्रेजेंस यू कैन फील योर ओन फॉर्मलेस एंड टाइमलेस रियलिटी एज द अनमेनिफेस्टेड लाइफ दैट एनिमेट्स योर फिजिकल फॉर्म। हमारे presence के अंदर में जो स्टिलनेस होती है उसमें हम फील कर सकते हैं अपनी जो फॉर्मलेस और टाइमलेस रियलिटी है। मतलब जो हम खुद को एक फॉर्म में, बॉडी के फॉर्म में देखते हैं, उस फॉर्म परे, और ये जो टाइम से भी परे एक रियलिटी है हमारी, एज द अनमेनिफेस्टेड लाइफ दैट एनिमेट्स योर फिजिकल फॉर्म। और ये अनमेनिफेस्टेड लाइफ ही हमारी फिजिकल फॉर्म को एनिमेट करती है, हमारे वर्ल्ड को एनिमेट करती है। You can then feel the same life deep within every other human and every other creature। तो जब हम इन चीजों को समझ जाएंगे तो फिर हमें फील होगा कि हमारे अंदर में और सबके अंदर में, सारे क्रिएचर्स के अंदर में भी ये सेम लाइफ ही मौजूद है। You look beyond the veil of form and separation। तो उसके बाद में हम किसी को भी फॉर्म और सेपरेशन के बियॉन्ड ही देखेंगे, मतलब बॉडी फॉर्म में। और किसी को हम सोचते हैं हमसे अलग है तो हम वैसे नहीं देखते हैं, उसके बियॉन्ड ही देखते हैं। दिस इज द रियलाइजेशन ऑफ वननेस, दिस इज लव। और जब हमें ऐसे रियलाइज होता है ना कि सब लोग एक ही हैं, ये जो रियलाइजेशन है ना वननेस की, यही लव है। व्हाट इज गॉड? द इटर्नल वन लाइफ अंडरनेथ ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ। गॉड क्या है? इटर्नल वन लाइफ, जो कि ऑल द अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जितने क्रिएचर्स होते हैं उनके अंडर में जो एक लाइफ होती है वही गॉड है।
What is love? To feel the presence of that one life deep within yourself and within all the creatures. तो हमने गॉड देखा ना, गॉड क्या है? इटर्नल वन लाइफ है जो कि सारी फॉर्म ऑफ लाइफ के अंदर में होता है। और लव क्या है? कि वो जो वन लाइफ है यानी कि जो गॉड है, उनको उनके प्रेजेंस को फील करना, अपने अंदर में फील करना। और जितने क्रिएचर्स होते हैं उनके अंदर में भी उनके प्रेजेंस को फील करना। टू बी इट देयरफॉर ऑल लव इज द लव ऑफ गॉड। तो ऑथर कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ? जितना भी लव होता है वो सब कुछ गॉड का ही लव होता है। लव इज नॉट सिलेक्टिव जस्ट एज द लाइट ऑफ द सन इज नॉट सिलेक्टिव। लव सिलेक्टिव नहीं होता, मतलब किसी को सिलेक्ट नहीं करता है किसी बेसिस पे कि हाँ इसने ये किया मतलब इसको लव। लव सिलेक्टिव नहीं होता है, जैसे कि सन की जो लाइट होगी, सूरज की किरण है, वो भी सिलेक्टिव नहीं होती, वो सबके लिए अवेलेबल है। अगर हम खिड़की को बंद कर देंगे तभी भी वो सूरज की किरणें आगे बंद नहीं होती, तभी वो उस खिड़की पर भी लाइट होती है, वो सिलेक्टिव होती है, वो सबको मिलती है। वैसे ही लव भी सिलेक्टिव नहीं होता, वो सबके पास होता है, सबके अंदर होता है। इट डज नॉट मेक वन पर्सन स्पेशल, इट इज नॉट एक्सक्लूसिव। लव के लिए पर्सन स्पेशल नहीं होता है, ये एक्सक्लूसिव होता है, एक्सक्लूसिव भी अवेलेबल होता है सबके के लिए। एक्सक्लूसिविटी इज नॉट द लव ऑफ गॉड बट द लव ऑफ ईगो। अगर एक्सक्लूसिविटी है मतलब किसी को स्पेशली ट्रीट करके सिर्फ उसके लिए लव है, तो फिर वो गॉड वाला लव नहीं है, वो ईगो वाला लव। However, the intensity with which true love is felt can vary. तो ऑथर कह रहे हैं लेकिन फिर भी जो ट्रू लव की इंटेंसिटी है, जितना हम किसी के लिए ट्रू लव फील करते हैं, वो वेरी कर सकता है। There may be one person who reflects your love back to you more dearly and more intensely than others, and if that person feels the same toward you, it can be said that you are in a love relationship with him or her. ऑथर बता रहे हैं कि जैसे हमारे मन में सबके लिए लव होगा, तो उसकी इंटेंसिटी अलग अलग क्यों करेगी? क्योंकि उस उनसे भी हमें रिफ्लेक्ट होकर के वो लव आएगा। तो जब किसी और पर्सन के अंदर में भी वो भी अगर फील करे हमारे लिए लव, तो ऐसा कहा जाएगा कि हम उसके साथ में लव रिलेशनशिप में है। The bond that connects you with that person is the same bond that connects you with the person sitting next to you on a bus or with a bird, a tree, a flower. तो ऑथर कह रहे हैं कि ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड जो हमें कनेक्ट करता है उस पर्सन से, वही सेम बॉन्ड हमें कनेक्ट करता है जो भी हमारे बगल में बैठा है, चाहे कोई चिड़िया है, चाहे कोई पेड़ है, चाहे कोई फूल है। Only the degree of intensity with which it is felt differs. बस जो डिग्री ऑफ इंटेंसिटी है, जो जितना हमें फील होता है, सबके लिए फील होता है, किसी के लिए ज्यादा किसी के लिए कम, वो उसके भी रिफ्लेक्शन के वजह से फील होता है। क्योंकि लोग भी रिफ्लेक्ट करते हैं उस लव को, क्योंकि सबके अंदर में ही वो लव मौजूद होता है। Even in a even in an otherwise addictive relationship, there may be moments when something more real shines through something beyond your mutual addictive needs. These are moments when both of you and your partner's mind briefly subside and the pain body is temporarily in a dormant state. तो अगर बता रहे हैं कि जो अडिक्टिव रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें भी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब सच में कुछ रियल होता है, वो शाइन थ्रू करता है, जो कि उनके म्यूचुअल एडिक्टिव नीड्स के बियॉन्ड होता है, तो वो रियल होता है। और ये मोमेंट्स तब होते हैं जबकि पेन बॉडी डोमेंट स्टेट में होती है, मतलब वो एक्टिव नहीं रहती है टेम्पोररीली। This may sometimes happen during physical intimacy or when you are both witnessing the miracle of childbirth or in the presence of death or when one of you is seriously ill. Anything that renders the mind powerless. तो ऑथर कह रहे हैं कि जब भी माइंड पावरलेस हो जाता है, जैसे कि फिजिकल इंटीमेसी के केस में, या फिर चाइल्ड बर्थ के केस में, डेथ के केस में, कुछ
सीरियसली इलनेस होती है, वैसे वाले केसेस में जब माइंड पावरलेस होता है, तभी भी ये जो लव होता है रियल वाला, ये फील होता है. When this happens, your brain, which is usually buried underneath the mind, becomes revealed, and it is this that makes true communication possible. और ऐसा जब होता है, तो जो हमारी बीइंग होती है, वो यूजुअली जो माइंड के अंडरनेथ बरीड होती है. माइंड के अंडरनेथ जो बीइंग बरीड है, मतलब कि क्या है, हम माइंड को ही ज्यादा यूज करते हैं, ईगो के साथ में ज्यादा आइडेंटिफाई करके रखते हैं, पर एक बीइंग भी है जो वॉच कर रही है. तो ये जो बीइंग है, ये रिवील हो जाती है उस टाइम, और उस टाइम में ट्रू कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है. ट्रू कम्युनिकेशन इज कम्युनियन, द रियलाइजेशन ऑफ वननेस व्हिच इज लव. ट्रू कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनियन मतलब एक साथ होना, एक इकट्ठे होना, जो रियलाइज करना कि वननेस है. सारी लाइफ फॉर्म्स जितने भी है वो सब एक है, उन सब के पीछे जो एक लाइफ फॉर्म है, इटर्नल लाइफ फॉर्म, वो गॉड है, और वो ही लव है. Usually, this is quickly lost again unless you are able to stay present enough to keep out the mind in its old patterns. Usually क्या होता है कि ये जो ट्रू कम्युनिकेशन है वो लूज कर देते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में हम ज्यादा देर नहीं रह पाते हैं, या फिर अपने माइंड से खुद को डिसाइडेंटिफाई करके ज्यादा देर नहीं रख पाते, और जो ओल्ड पैटर्न है वही रिपीट होते हैं. As soon as the mind and mind identification return, you are no longer yourself but a mental image of yourself. जैसे ही हमारे माइंड और माइंड आइडेंटिफिकेशन रिटर्न, कि हम माइंड के साथ खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, तब हम नो लॉन्गर योरसेल्फ, तब हम जो रियल में बीइंग जो हमारी, वो हम नहीं रहते हैं, और जो मेंटल इमेज होती है हमारी जो क्रिएट करी हुई होती है ego की, तब हम फिर उसी से खुद को देखने लग जाते हैं. एंड यू स्टार्ट प्लेइंग गेम्स एंड रोल्स अगेन टू गेट योर ईगो नीड्स met. और उसके बाद में फिर हम वापस से गेम्स प्ले करने लग जाते हैं, रोल्स प्ले करने लग जाते हैं, ताकि हमारी ईगो की जो नीड्स है वो फुलफिल हो सके. यू आर अ ह्यूमन माइंड अगेन, pretending to be a human being, interacting with another mind, playing the drama called love. तो उसके बाद में हम क्या बन जाते हैं? वापस से एक ह्यूमन माइंड ही बन जाते हैं, कि हमने माइंड के साथ खुद को आइडेंटिफाई कर लिया, इसीलिए हम ह्यूमन माइंड बन गए. और उसके बाद में हम प्रिटेंड करते हैं कि हम एक ह्यूमन बीइंग है, या हम खुद एक ह्यूमन माइंड बन जाते हैं, माइंड के साथ आइडेंटिफाई करते हैं. लेकिन हम प्रिटेंड क्या करते हैं कि हम एक ह्यूमन बीइंग है, लेकिन हमने बीइंग के साथ में खुद को आइडेंटिफाई, और हम ऐसे सोचते हैं कि इंटरेक्टिंग विद अनदर माइंड. तो जो सामने वाला है वो भी तो अपने माइंड से आइडेंटिफाइड है, इसीलिए हम उसी के साथ में खुद को खुद मतलब उसी के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं और प्ले करते हैं ड्रामा. ड्रामा प्ले कर रहे हैं फॉर लव. Although brief glimpses are possible, you cannot flourish unless you are communicative of mind identification and your presence is intense enough to have dissolved the pain point. ये जो ब्रीफ ग्लिम्सेस होते हैं, ये पॉसिबल होते हैं, मतलब जब हम माइंड से खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, और ट्रू लव जो हम फील करते हैं, ये ब्रीफली छोटे छोटे मोमेंट्स के लिए पॉसिबल तो होता है, जब तक हम अपने माइंड से परमानेंटली फ्री नहीं हो पाए. मतलब माइंड के साथ जो खुद को हमने आइडेंटिफाई करके रखा है, उसको जब तक हम परमानेंटली फ्री नहीं करेंगे, तब तक वो लव जो हमारे अंदर में है, वो फ्लरिश नहीं कर. And your presence is intense enough to have dissolved the pain body. हमारी पेन बॉडी को डिसॉल्व करने की हमारी प्रेजेंस होती है, उसको बहुत इंटेंस होनी होगा. और यू कैन एटलीस्ट रिमेन प्रेजेंट एज द वॉचर, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम वॉचर की तरह प्रेजेंट हैं, कि हम वॉच कर रहे हैं हमारे अंदर में क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं. The pain body cannot then take you over and so become destructive of love. और जब हम ऐसा करेंगे ना, भूमि के साथ खुद को आइडेंटिफाई करेंगे, वॉच करेंगे अपने, जो पेन बॉडी है वो हमें टेक ओवर नहीं कर सकती है, एंड सो बिकम डिस्ट्रक्टिव ऑफ लव. Relationships as
स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ये तो बहुत अच्छा एक टॉपिक है। एज द egoic mood, as the egoic mode of consciousness and all the social, political, and economic structures that it created enter the final stage of collapse, the relationship between men and women reflect the deep state of crisis in which humanity now finds itself. ऑथर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो इगोइक मोड है कॉन्शियसनेस का, वो और जितने भी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्रिएट होते हैं, और उसके बाद में हम एंटर करते हैं फाइनल स्टेज ऑफ कोलैप्स, मतलब खत्म होने के लिए, ब्रेक होने के लिए। रिलेशनशिप होते हैं जो मेन और वुमेन के बीच में, वो रिफ्लेक्ट करते हैं डीप स्टेट ऑफ क्राइसिस, मतलब वो खत्म होने से पहले एकदम क्राइसिस वाला डीप स्टेज रिफ्लेक्ट करता है इन विच ह्यूमैनिटी नाउ फाइंड्स इटसेल्फ, जिसमें कि ह्यूमैनिटी आज खुद को देख रही है। As humans have become increasingly identified with their mind, most relationships are now not rooted in being and so turn into a source of pain and become dominant and problems with conflict. क्योंकि जो ह्यूमंस है वो आजकल क्या करते हैं, माइंड के साथ में बहुत ज्यादा आइडेंटिफाइड होते हैं ना। मोस्ट रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि बीइंग में वो डीप रूटेड नहीं रहते हैं, और इसीलिए जो रिलेशनशिप रहता है वो एक सोर्स ऑफ पेन बन जाता है, और उसमें फिर क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट से ही वो ज्यादा डोमिनेटेड रहता है। Millions are now living alone or as single parents, unable to establish an intimate relationship or unwilling to repeat the insane drama of past relationships. मतलब बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अकेले रह रहे हैं या फिर सिंगल पेरेंट्स की तरह रह रहे हैं, क्योंकि वो एक इंटीमेट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, या फिर वो अपने पास्ट रिलेशनशिप में जो इतना ड्रामा हुआ है, क्योंकि पेन होता है ना, उसके बाद में उस चीज को वापस से वो दोहराना नहीं चाहते हैं, जैसे डर जाते हैं कुछ एक्सपीरियंसेस के वजह से, इसलिए वो दोबारा उन चीजों में नहीं आना चाहते हैं। तो इसलिए वो लोग अकेले रहना प्रेफर कर रहे हैं। Others go from one relationship to another, from one pleasure and pain cycle to another. दूसरे लोग क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्लेजर और पेन साइकिल है, जैसे ऑथर ने एक्सप्लेन किया कि इनिशियल स्टेज में तो प्लेजर ही मिलता है क्योंकि वो हैप्पी फीलिंग सरफेस करती है, और वो जो पेन वगैरह रहता है वो अंडरनेथ में उसके अंडरलाइंग ही रहता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब बिहेवियर हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, तब फिर जो पेन था, अंडरलाइंग पेन, वो उभर के वापस आता है, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेन हो जाता है। तो ये प्लेजर पेन वाली जो साइकिल है, वो एक प्लेजर पेन वाली साइकिल से दूसरी प्लेजर पेन वाली साइकिल में चले जाते हैं, इन सर्च ऑफ द इल्यूसिव गोल ऑफ फुलफिलमेंट थ्रू यूनियन विद द अपोजिट एनर्जी पोलैरिटी। ऐसा वो क्यों करते हैं, एक से दूसरे में क्यों जाते हैं, क्योंकि वो जो इल्यूसिव गोल है एक फुलफिलमेंट का, अपने अंदर में जो एक फुलफिलमेंट होती है कि हम एक यूनियन है, एक एक साथ में इकट्ठे हैं हम opposite energy polarity के साथ में। Still others compromise and continue to be together in a dysfunctional relationship in which negativity prevails for the sake of the children or security, through force of habit, fear of being alone, or some other mutually beneficial arrangement, or even through the unconscious addiction to the excitement of emotional drama and pain। और कुछ लोग क्या करते हैं, वो कंटिन्यू करते हैं एक डिसफंक्शनल रिलेशनशिप में, है ना, वो कंटिन्यू करते हैं इसमें जो नेगेटिविटी ही भरी होती है। इसलिए या तो उनके चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए, या फिर कोई सिक्योरिटी नीड्स होती है, या फिर कोई हैबिट की वजह से, कोई फियर की वजह से कि अकेले रहना, अकेले होने से डर लगता है, या फिर कुछ म्यूचुअली बेनिफिशियल अरेंजमेंट होती है आपस में उन पार्टनर्स में, या फिर जो अनकॉन्शियस एडिक्शन हो जाती है, जो एक्साइटमेंट रहता है इमोशनल ड्रामा का, ऑफ इमोशनल ड्रामा एंड पेन।
तो वो इमोशनल ड्रामा और पेन की एक्साइटमेंट के लिए भी वो लोग उस रिलेशनशिप में रहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें भी एक्साइटमेंट ही फील होती है। मतलब जैसे हमने पुराने चैप्टर्स में भी देखा है ना कि क्यों लोग एडिक्टेड रहते हैं, मतलब वो पेन वाले ही उस चीज में वो रहना क्यों पसंद करते हैं। तो आज लगता है कि यहीं तक ही होगा। अभी हम आपसे क्वेश्चंस शेयर करेंगे, ठीक है। आज के क्वेश्चंस क्या है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कैटलिस्ट फॉर चेंज इन एन एडिक्टिव रिलेशनशिप? हैव यू एवर ट्राइड दिस बिफोर टू हार्मोनाइज योर रिलेशनशिप विद समवन? तो पहला क्वेश्चन ये है जो आज हमने पढ़ा कि अपने जो एडिक्टिव रिलेशनशिप्स है इसको चेंज करने के लिए, जैसे हमारा पहला टॉपिक आज क्या था, फ्रॉम एडिक्टिव रिलेशनशिप्स टू एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स। तो अगर हमें एडिक्शन से एनलाइटनमेंट की तरफ जाना है तो अपने रिलेशनशिप को चेंज करने के लिए ग्रेटेस्ट कैटलिस्ट है, सबसे ज्यादा जल्दी हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या पढ़ा था हमने अभी? एक्सेप्टेंस, कंप्लीट एक्सेप्टेंस। तो वो होनी चाहिए। अभी सेकंड इसका, इसके अंदर का सेकंड पार्ट क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का, कि क्या आपने ये पहले कभी ट्राई किया है किसी के साथ अपने रिलेशनशिप को हार्मोनाइज करने के लिए? इसका आंसर आपको देना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ कैन वी ट्रांसफॉर्म आवर रिलेशनशिप्स इनटू अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस टू को-इवॉल्व? सेकेंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हम कैसे अपने रिलेशनशिप्स को एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि वो को इवॉल्व करें, मतलब दोनों मिलकर, दोनों पार्टनर्स मिलकर के एक साथ में आगे बढ़े, कैसे इवॉल्व कर सकते हैं स्पिरिचुअली। What if you and your partner aren't on the same page in this context? क्या होगा अगर आप और आपके पार्टनर इस चीज में सेम कॉन्टेक्स्ट में, मतलब एक साथ में ना हो, मतलब आप स्पिरिचुअली इवॉल्व करना चाहते हो और सामने वाला नहीं करना चाहता हो, तो फिर क्या होगा? तो इसका आंसर आपको सोच करके लिखना है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें लिख सकते हैं और यहाँ पे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन, Thank you so much, sister. फॉर ज्वाइनिंग।